प्रेशर में कट करते हैं। Year, all scheduled commercial banks credit has grown by 16.2% and aggregate deposit has grown by around 12 to 13%. As demand for credit continues, we expect credit and deposit may grow up by 14 to 15% in financial year 24. In the backdrop of this economic environment, I would like to place before all of you the highlights of the bank's performance in quarter one of financial year 24. I am pleased to announce that for once again we have recorded the highest ever profit, and also this is something which is a matter of pride for us. It may not be out of place to mention that very often there is a tendency on the part of the analyst community to really evaluate the performance in terms of quarter on quarter. We have to be very mindful of the fact that the quarter one is always a unique quarter because of the two reasons. Invariably in the last quarter we have sufficient earnings. Various one-offs are there which are getting recorded, whereas in the first quarter those benefits are not available. Secondly, when it comes to asset quality as well, when we reckon the stress or NPA or SMA, they are at a point of time. Whereas the fact of the matter is that at a point of time there could be a deterioration, but overall the recovery keeps on happening every day. For instance, in the current instance also, when we look at our SMA 1 and SMA 2, which is actually stress is somewhere around 7,000 odd crores. But if we look at it at the end of the month of July, we have already recovered 1,500 crores out of that. So I think to that extent, it is very material that we should actually evaluate YOY performance in the first quarter as compared to the first quarter of the previous financial year. So in that context, we have posted the highest ever quarterly profit of 16,884 crores. Net profit for this quarter one has increased by 178% YOY, with operating profit at 25,297. It has increased by 98.37% on a YOY basis. ROA of the bank for quarter one has improved by 74 basis points and it is at 1.22%. ROE has improved to 24.42%. Most other core profitability metrics have also improved sequentially as well as on a YOY basis. Net interest income for quarter one increased by 24.71% on the back of improvement in yields and continuing credit offtake. Domestic NIM stands at 3.47%, and it becomes all the more relevant in the context of our bank because our international book is just about 5 lakh crore, 5 trillion, and our total asset size is about 33 trillion. And also when it comes to international book, we are very, very mindful in terms of the evolving global economy and the kind of stresses and strains which are evident in the global economy. So that's the very reason why our domestic book has grown almost at about 15% plus, whereas the international book has grown little lower, and that is a very, very conscious effort on our part. ओके देखिए वो एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर हैं, वो फ्लैशेस भेजते रहेंगे और हम डालते रहेंगे यहाँ पर। एक जो चीज़ खरा साहब ने कही कि ऑब्वियसली खैर हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को आदत है ये जब भी कुछ चीज़ ख़राब होती है तो वो जर्नलिस्ट के ऊपर डाल दी जाती है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देख रहे हैं। कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ नंबर्स देखे जाते हैं जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी, उसको आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट को हम ईयर ऑन ईयर ही लेते हैं, उसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं लेते हैं। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ NIM को लेते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को, कि पिछले साल क्या मार्जिन थे उससे कोई लेना देना नहीं है। हर क्वार्टर में आपकी किस तरीके से कॉस्ट ऑफ फंड चेंज हो रही है उससे वास्ता होता है। इसके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन मार्केट देखती है, जर्नलिस्ट सिर्फ उसको रिपोर्ट करते हैं। हम भी इसलिए देखते हैं क्योंकि ब्रोकरेज यही देखते हैं तो उसके लिए हम भी यही देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। ये नंबर देखिए पैट और NII के हमने ईयर ऑन ईयर दिखाए हैं,
सिर्फ NIM का नंबर हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया, तो वो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट सिर्फ इस तरीके से देखते हैं, मार्केट इस तरीके से देखती है। एसेट क्वालिटी का भी यही मामला है, क्योंकि एक ग्रॉस NPA नेट NPA आप एक पर्टिकुलर नंबर पर आ गए, उसके बाद 3 क्वार्टर पहले वो नंबर क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कही जिस पर मैं सहमत हूँ कि पिछले क्वार्टर में कुछ वन ऑफ्स थे जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी लग रही थी, उसके कंपैरिजन में क्योंकि इस क्वार्टर में कोई वन ऑफ्स नहीं है, इसके लिए आपको ये अर्निंग्स थोड़ी सी कम लगेंगी। ये बात से मैं उनकी सहमत हूँ। तो चलिए ये बात उनकी मान लेते हैं। मानस, टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी वीक हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते एक बड़ी रैली बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद 52 वीक हाई निकाल देगा, उसके बाद इसमें ब्रेक आया और आज मानस इसमें एक कोलैप्स। SBI को कैसे रीड कर रहे हैं आप? देखिए, डेफिनेटली अगर हम चार्ट्स की बात करें तो 2 दिन पहले ही वीकनेस देखने को मिल रही थी जब 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया था। आज इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज दोनों को ब्रीच किया। और ध्यान रखिए आज वीकली क्लोजिंग है, तो अगर वीकली क्लोजिंग हमें 575 के नीचे देखने को मिलेगी तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और बिगड़ेगा और हो सकता है आपको 550 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, या तो हमें ब्रेकआउट अगर 590 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करनी है, और ये तो नीचे अगर 550 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले और कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले तब वहां पर खरीदारी करनी है। बट ये गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए इस गिरावट पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस डिप पर खरीदारी ना करें, कुछ और कमजोरी देखी जा सकती है, उसके बाद सेटल होने दें, फिर रिविजिट करेंगे। अच्छा, इस बीच रिटेल ग्रोथ करीब कह रहे हैं कि 16%, लेकिन ध्यान रहे इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी वो नियरली 16% की थी, वो 14% के आसपास आई है। उस पर ब्रेकअप आएगा कुछ देर में कि एग्री लोन से क्या परेशानी हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्पेसिफिकली।